السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اور میں ہوں نصرت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ساہیوال میں 2 مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات کے نتیجے میں کم سن بچی سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بائی پاس کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹی جاں بحق ہوئی ہیں، جبکہ شوہر اور ساس زخمی ہوئے۔ دوسرے واقعے میں فوارہ چوک پر آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار مزدوروں کو روند ڈالا، جس سے مشتاق نامی مزدور جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹھٹھا روڈ پر پٹھان کالونی کے قریب تیز رفتار نامعلوم گاڑی نے ایک کار کو زوردار ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں عنایت سومرو، ممتاز سومرو اور فیضان سومرو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ نیاز سومرو اور سہیل میمن شدید زخمی ہوئے، جنہیں تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع پر رکن قومی اسمبلی سید ایاز شاہ شیرازی موقع پر پہنچے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ جاں بحق اور زخمی افراد کا تعلق دڑوں سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ پولیس نے فرار ہونے والی گاڑی کی تلاش اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ عارف والا میں قبولہ روڈ پر ٹریفک حادثہ، 2 موٹر سائیکلوں اور رکشہ کے تصادم میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ عارف والا کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے، جہاں ایک موٹر سائیکل کے اوور ٹیک کرنے کے دوران سامنے سے آنے والی دوسری موٹر سائیکل سے تصادم ہو گیا، جبکہ رکشہ بھی الٹ گیا ہے۔ حادثے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو 1122 نے فوری طبی امداد کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ چنیوٹ میں ہارویسٹر اور رکشہ میں خوفناک تصادم، بہن بھائی جاں بحق، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ چنیوٹ کے لاہور روڈ پر ہارویسٹر اور رکشہ میں تصادم کے نتیجہ میں 14 سالہ نبیلہ اور 12 سالہ نوید موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 7 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیمز نے لاشوں اور زخمیوں کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اسلام کوٹ کے تھرکول بلاک 1 میں پاور پلانٹ پر ڈیوٹی کے دوران مزدور گرم پانی کے ٹینک میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد پرسا اور مقامی افراد نے تھرکول کے مرکزی گیٹ پر شدید احتجاج اور دھرنا دیا ہے۔ مظاہرین نے انتظامیہ پر غفلت اور ناقص سیفٹی انتظامات کے الزامات عائد کرتے ہوئے شفاف انکوائری اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر دھرنا ختم کرایا اور ٹریفک بحال کر دی۔ ادھر صادق آباد میں اینٹوں کے بھٹے پر کام کے دوران مزدور آگ میں گر کر شدید جھلس گیا۔ صادق آباد کے علاقہ گڑی بیگڑ کے قریب اینٹوں کے بھٹے پر کام کے دوران مزدور آگ میں گر کر شدید جھلس گیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق مزدور کا جسم تقریباً 70% تک جل گیا، جسے فوری ابتدائی طبی امداد کے بعد شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھٹے میں آگ جلائی جا رہی تھی اور مزدور دوران کام اس میں گر گیا۔ اور ناظرین، دوسری جانب خیرپور میں کاروکاری کے الزام پر قتل ہونے والی خاتون کی تدفین بغیر اسلامی رسومات کے کیے جانے پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ خیرپور میں کاروکاری کے الزام میں قتل ہونے والی خاتون روبینہ خالد کے کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا، جہاں ورثاء کا دعویٰ ہے کہ مقتولہ کی تدفین بغیر کفن، غسل اور جنازے کے کی گئی ہے۔ ورثاء کے مطابق یہ عمل پولیس کی موجودگی میں انجام دیا گیا، جبکہ جرگہ کرنے والا مرکزی ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس نے تدفین کرانے والے مولوی کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ واقعے نے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے اور انصاف کے تقاضے زور پکڑ رہے ہیں۔ نوشہر و فیروز میں تیز رفتار وین اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا، نوجوان جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے کی شناخت زہیب مشوری کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ مسافر وین کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ چوہا سیدن شاہ میں شہد کی مکھیوں کے حملے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ چوہا سیدن شاہ کے ڈھوک ٹالیاں ڈیم کے قریب سیر کے دوران شہد کی مکھیوں کے حملے سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ واقعے کے دوران گھبراہٹ میں ایک 20 سالہ خاتون اہل خانہ سے بچھڑ کر جنگل میں چلی گئی، جسے ریسکیو 1122 نے فوری سرچ آپریشن کے بعد بحفاظت تلاش کر لیا۔ متاثرین کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ریسکیو حکام نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔
जामशोरो के इलाके कोटरी साइट में फायरिंग से मासूम बच्चा जाँ बहक हो गया। जामशोरो के इलाका कोटरी साइट में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में एक मासूम बच्चा जाँ बहक हो गया, जिस पर एसएसपी जफर सदीक शांगा ने फौरी नोटिस लेते हुए जाए वक़ुआ का दौरा किया है। उन्होंने मौका पर अफसरान से तफसीलात हासिल की हैं और डीएसपी कोटरी को शफाफ इंक्वायरी की हिदायत भी जारी की। एसएसपी का कहना था कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जबकि अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। उधर थाना फतेह शाह पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मुकाबले के बाद एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एहलकारों पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की, ताहम ताक़ुब के दौरान दरख्त से टकराकर जख्मी हो गया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद यार डकैती, चोरी और रॉबरी समेत 27 मुकदमात में मतलूब था, जबकि उसके कब्जा से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। कंदकोट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाइक लिफ्टर गिरफ्तार, मुतादिद मसरूका मोटरसाइकिलें भी बरामद की। एसटीपीओ जावेद अहमद सांगरी की निगरानी में की गई कार्रवाई के दौरान मुलजिम दिलबर अली से 8 मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस रहा है, जबकि उसके खिलाफ मजीद तहकीकात जारी हैं। कोटअद्दू में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, छीनी गई गाड़ी 24 घंटों में बरामद कर ली गई। एसडीपीओ नईम बरमानी की निगरानी में थाना सदर सरवर शहीद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक रोज कबल डकैती में छीनी गई गाड़ी को 24 घंटों के अंदर बरामद करके मुद्दईयान के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम का कहना है जदीद टेक्नोलॉजी और मुसलसल मेहनत से जराइम पर काबू पाया जा रहा है, जबकि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, काहना में मुसल्ला डाकुओं की वारदात, लाखों मालियत के मवेशी लूट लिए गए। वारदात के दौरान शहरियों की मज़ाहमत पर एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम के होश में आने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। लाहौर के इलाका नवाब टाउन ओपीएफ में लड़की से मोबाइल स्नैचिंग के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम अदनान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जियो फेंसिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से ट्रेस किया गया, जबकि नाकाबंदी के दौरान मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की है। फायरिंग के दौरान मुलजिम अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा, जबकि उसका साथी फरार हो गया है। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। साहिवाल में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात फरोश गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चर्स बरामद कर। थाना डेरा रहीम की चौकी श्रीवाला पुलिस ने एएसआई जाहिद हुसैन की सरबराही में कार्रवाई करते हुए मुलजिम अजहर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जा से 1100 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को पाबंद सलसल कर दिया है, जबकि डीपीओ ने कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज इकदाम जारी रहेंगे। कबीरवाला के थाना बारामेल पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1600 ग्राम चर्स बरामद हुई है, जबकि उसके खिलाफ मजीद मुकदमा के दर्ज किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है और उससे कबल भी कई मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है, जबकि मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहावलपुर में पुलिस का एहसन इक़दाम, 11 साला गुमशुदा बच्चे को तलाश करके अहले खाना से मिला दिया। बच्चे की दादी ने गुमशुदगी की दरख्वास्त दी थी, जिस पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए तलाश शुरू की। कामयाब कार्रवाई के बाद बच्चे को बाहिफाजत घर पहुंचा दिया गया, जिस पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। शहरियों ने एसएचओ मोहम्मद विर्क और उनकी टीम को शाबाश देते हुए फूलों के हार पहनाए और कारकर्दगी को सराहा। ओकाड़ा के इलाका हवेली लखा के करीब चकनवार चिश्ती में दो ग्रुपों के दरमियान पुरानी रंजिश पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जो बाद में फायरिंग में तब्दील हो गया। फायरिंग के दौरान गोलियां करीबी खेतों में मौजूद मवेशियों को लगीं, जिसके नतीजा में एक भैंस हलाक जबकि दूसरी जख्मी हुई। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और हालात को कंट्रोल करते हुए मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी।
जहानिया में मुबैना तौर पर गंदम की बाकियात को आग लगा दी गई। जहानिया के इलाके अड्डा के करीब एक शख्स ने मुबैना तौर पर गंदम की बाकियात को आग लगा दी है, जिससे करीब फलदार दरख्त जल गए हैं, जबकि दरख्तों के नीचे बंधे मवेशी भी मुतासिर हुए। मुकामी अफराद के मुताबिक रोकने पर मुलजिम ने मुजाहमत की और आग बुझाने की कोशिशों को नजरअंदाज किया। वाक़े के बाद अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस हुकाम और आला इंतजामिया से फौरी इंसाफ और कार्रवाई का मुतालिबा किया है। ओकाड़ा के इलाके शकूराबाद में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई है। कई एकड़ पर खड़ी फसल जलकर खाक हो गई है। वाक़े की वजह से ताहाल सामने नहीं आ सकी है, जबकि मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ रहे। मुतासरा किसान की मेहनत लम्हों में राख हो गई है, जबकि रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड बर वक्त मौका पर न पहुँच सकी। मुतासरा किसान ने हुकूमत पंजाब से फौरी माली इमदाद की अपील की है। जड़ावाला में आए रोज शॉर्ट सर्किट के बायस आतिश ज़दगी के वाक़यात ने दुकानदारों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। गुज़िश्ता 4 रोज में 3 दुकानें आग लगने के बायस लाखों रुपए के नुकसान के साथ जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं, जिस पर मुतासिरा दुकानदारों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। तफसीलात जानते हैं कासिम हुसैन भट्टी से। जी बिल्कुल, जड़ावाला में गुज़िश्ता जो हफ्ता है 7 दिन में जो है वो 3 जगह पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिश ज़दगी हुई है, जिससे लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि हालिया लोड शेडिंग के दौरान वापटा की इंतहाई नहली है कि जो तारें हैं वो नंगी हैं, जगह जगह पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वापटा की नहली की वजह से जो है वो आतिश ज़दगी हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी लंडे बाज़ार में जो आग लगी है वो भी शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसके बाद जो आज दुकानदार है उन्होंने अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए इंतज़ामिया से फौरी एक्शन लेने का भी मुतालबा किया है और नुकसान के अजाले का भी कहा है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते कि क्या कहते हैं। जी बताइए कि ये जो आग लगी है कैसे लगी है और क्या सिलसिला चल रहा है जनाब? ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ये गुज़श्ता 3 दिनों में जड़ावाला में 7 दुकानें जली हैं। कल मेरी दुकान बंद करके मैं घर गया हूँ, पीछे शॉर्ट सर्किट हुआ है। मेरी और साथ वाली दोनों दुकानें जली हैं। हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वापटा के खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। ये जो तारें लटक रही हैं, मीटर की तारें लटक रही हैं, नंगी तारें हमने भी देखी हैं, इस पे आपने कभी वापटा को आगाह किया है? कोई एप्लीकेशन दी है, उनको आगाह किया है इस सिलसिले में? जी कई दफ़ा वापटा को आगाह किया है कि ये तारें चौक पे लटक रही हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और किसी इंतज़ामिया ने इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। जी बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि हमने बार दरखास्तें गुजारी हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। वापटा की इंतहाई नहली है, इस पे जो तारें हैं वो भी दिखाई जा सकती हैं। बाज़ार में जो तारें लटक रही हैं जो किसी भी बड़े सानिया का मज़ीद भी बड़े सानिया का सबब बन सकती हैं। इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। दुकानदारों का कहना है कि वापटा एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो हमारा नुकसान हुआ है गवर्नमेंट इसका भी उजाला करे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे गोजरा में ड्यूटी मजिस्ट्रेट का अहम फैसला, शवाहिद न होने पर मुल्जिमान को बरी कर दिया। गोजरा में लॉकडाउन केस में ड्यूटी मजिस्ट्रेट शुएब जफर बाजवा ने अहम फैसला सुनाते हुए नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि मुकदमे में ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे, जिसके बायस केस खारिज किया गया। फैसले को इंसाफ की फराहमी की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, ओकाड़ा के थाना बी डिवीजन की हदूद में एक दुकानदार की जानिब से कमसिन बच्चे से मुशक्कत लेने और उसे सजा देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतलात के मुताबिक बच्चे को छुट्टी करने पर कान पकड़वा कर सजा दी गई, जबकि उसे गाड़ियों की मरम्मत के काम पर भी लगाया गया था। अफसोसनाक खबर आपको दें नाज़रीन, ओकाड़ा के थाना बी डिवीजन की हदूद में एक दुकानदार की जानिब से कमसिन बच्चे से मुशक्कत लेने और उसे सजा देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतलात के मुताबिक बच्चे को छुट्टी करने पर कान पकड़वा कर सजा दी गई, जबकि उसे गाड़ियों की मुरम्मत के काम पर भी लगा दिया गया था। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अफजाल भट्ट ने। जी अफजाल, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, थाना बी डिवीज़न की हदूद में एक दुकानदार की जानिब से कमसन बच्चे से मुशक्कत लेने और इसे सजा देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतलात के मुताबिक बच्चे को छुट्टी करने पर कान पकड़वा कर सजा दी गई, जबकि इसे गाड़ियों की मरम्मत के काम पर भी लगाया गया था। फुटेज मंजर आम पर आने के बाद डीपीओ ने वाक़ये का नोटिस लिया और मकामी पुलिस को फौरी मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर थाना बी डिवीज़न पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए
मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ ने टीवी टुडे के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ऐसे वाक़यात किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है और वज़ीर आला की वाज़िया तौर पर पॉलिसी है कि तशद्दुद किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जी अफजाल भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी शानी पाकपतन में सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। करोड़ों की जमीन कब्जा माफिया से छुड़वा ली गई। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर सरकारी अराजी पर काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने कहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर रब दीनू मेतलू ने मौजा 6 KB में कार्रवाई करते हुए 500 किनाल कीमती जमीन जो है वो वागुजार करवा ली गई है। हुकाम का कहना है सरकारी जमीन अवाम की अमानत है और उस पर नाजायज कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। उधर कश्मीर में मेगा तरक्याती मंसूबे के तहत बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक दुकानें, ठेले और दीगर रुकावटें कानून के मुताबिक खत्म की जा रही हैं ताकि मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जा सके। हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी, जबकि शहरियों से ताउन की अपील भी की गई है। कमीर शरीफ में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 2 टी स्टॉल सील कर दी गई, जबकि कार्रवाई के तरीकाकार पर सवालात उठने लगे हैं। इत्तलात के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर रात के वक्त जारी थी, मगर कार्रवाई अगले रोज की गई, जिस पर मुतासरा दुकानदारों ने इतराज उठाया है। शहरियों का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई न होने से शफाफियत पर सवालात पैदा हो गए हैं, जबकि हुकाम से एहलकारों की कारकर्दगी का जायजा लेने का मुतालिबा किया जा रहा है। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर अताई डॉक्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गैर कानूनी मेडिकल सेंटर सील कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक इब्तदाई जांच में मतलूबा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की अदम मौजूदगी, गैर मुजाज तिबी प्रैक्टिस और नाकिस तिबी सहूलियात सामने आई। इंचार्ज पैराफोर्स का कहना है कि अताई और गैर कानूनी मराकज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, जबकि आवाम से भी ऐसे अनासर की निशानदही की अपील की गई है। वहां पत्तोकी में जाली और मुजरे सेहत दूध बनाने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हजारों लीटर दूध तल्फ कर दिया गया। पत्तोकी में डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर जाली दूध माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई है। इस दौरान 4400 लीटर जाली दूध बरामद करके मौका पर तल्फ कर दिया गया, जबकि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक दूध के टेस्ट नाकिस पाए गए हैं, जिस पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खानेवाल के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी ने सोडा वाटर यूनिट्स और ड्रिंक कॉर्नर्स और करियाना स्टोर्स की इंस्पेक्शन के दौरान बड़ी कार्रवाइयों में 25 किलो ममनुआ चाइना नमक, 50 लीटर जायदुल मयाद कोल्ड ड्रिंक्स और 20 किलो एक्सपायरी अशिया बरामद करके तल्फ कर दी गई। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी पर 6 फूड पॉइंट्स को मजमूई तौर पर 1,18,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि शहरियों को मयारी खुराक की फराहमी के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। और नाज़रीन, दूसरी जानिब लाल सुहानरा में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन का अचानक अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। कमिश्नर ने मरीजों को बर वक्त और मेयारी इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए अद्वियात की दस्तयाबी और अमले की हाजिरी पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया है। उन्होंने वाज़ेह किया, इलाज में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मरीजों की शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। उबाड़ा के नवाही इलाके कड़क में कायम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल अमारत और बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जहां तालिबात शदीद मुश्किलात में तालीम हासिल कर रही हैं। स्कूल में ना फर्नीचर मौजूद है, ना बिजली और वॉशरूम की सहूलत, जबकि बच्चे अक्सर खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अहले इलाका ने हुकूमत और महकमा तालीम से फौरी नोटिस देकर स्कूल की बेहतरी का मुतालिबा किया है। गुजरांवाला में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, रैली निकालकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और हुकूमत और गैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि बिजली की बंदिश की वजह से कारोबार और मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर लोड शेडिंग खत्म की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा।
शकरगढ़ में सुई गैस कनेक्शन की फराहमी मुतनाज़, शहरियों ने मेरिट नज़रअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। शकरगढ़ में सुई गैस कनेक्शन की फराहमी पर शहरियों ने संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा है कि भारी रकम जमा करवाने के बावजूद मुतादिद सार्फिन ताहाल कनेक्शन से मरहूम हैं, जबकि बाद में दरख्वास्त देने वालों को तरजीह दी जा रही है। शहरियों ने खुदाई, लाइन बिछाने और मीटर तनसीब में मुबैना करप्शन और सियासी मुदाखलत की निशानदही करते हुए शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया है। मुतल्लिका महकमे से मौक़िफ़ के लिए राब्ता भी किया गया, ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आ सका। आरिफाला में शहर और गिरदगांव में गैर एलानिया लोड शेडिंग के निज़ाम में ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर कर दिया है। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरियों ने कारोबार ठप होने लगे हैं, जबकि फसलों को पानी न मिलने से ज़रई पैदावार में कमी का खदशा भी पैदा हो गया है। तफसीलात जानते हैं मलिक हमाद अवान से। जी, मुल्क भर की तरह आरिफाला में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। 12 से 14 घंटे तक दई इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इससे न सिर्फ शहरी परेशान है बल्कि दई इलाकों के लोग भी खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम दई इलाकों के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग से इनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल बढ़े हैं। जी बताइएगा। बिल्कुल 12 से 14 घंटे लाइट बंद रहती है। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लाइट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ज़री ट्यूबवेल वेल का पानी का मसला है, बच्चों के रात को सोने का मसला है, सारी रात मच्छर काटते हैं। अक्सर औकात नमाज के टाइम भी बिजली बंद होती है, फजर टाइम भी जब फजर की अजान होती है तब लाइट बंद हो जाती है। सारा दिन लाइट तंग करती है, लोग थक हार कर शाम को घर आते हैं, आगे लाइट बंद होती है। दिन को बेचारे काम करके रात को घर पहुंचते हैं, रात को फिर सारी रात जागते हैं लाइट की वजह से। 3-3, 4-4 घंटे सारी रात लाइट नहीं आती, लोगों का बुरा हाल है। आपने बात सुनी, शहरी लोग काफ़ी बिजली के ना होने की वजह से मुतासर हैं, क्योंकि जिनका कारोबार बिजली से मुताल्लिका है, बिजली की लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। ना सिर्फ किसानों की फसलें मुतासर हो रही हैं, क्योंकि पानी वक्त पर ना मिलने की वजह से जो उनकी पैदावार है फसलों की, उनमें कमी का खदशा बढ़ गया। इसके साथ साथ रात के वक्त बच्चों को काफ़ी मसाइल ख़वातीन को दरपेश है। रात को सोने के वक्त अक्सर औकात बिजली नहीं होती। शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, इसका नोटिस लिया जाए और इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी। और उधर सांगला हिल शहर और गिरदोनवाह में बिजली की शदीद और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसके बाद शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। तवील लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली से। जी बिल्कुल, सांगला शहर और गिरदोनवाह में अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग का जो बदतरीन सिलसिला जारी है। बिजली के शदीद बहरान की वजह से जो है लोगों की कारोबारी सरगर्मियाँ जो है ठप होकर रह गई हैं। बिजली के लोड शेडिंग की वजह से शहरी शरीर परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कम कारोबार। पहले महंगाई की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं और लोड शेडिंग की वजह से कस्टमर भी जलील करते हैं और कारीगरों की मजदूरी भी नहीं दी जा रही। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है, कारोबार मुतासर हो चुके हैं। गवर्नमेंट से अपील है गैर लानिया लोड शेडिंग बंद की जाए, हमें सुकून से चैन से जीने दिया जाए। सुना के शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ यह तवील लोड शेडिंग में ज़िंदगी अजीन बनाकर रख दी है। लोड शेडिंग की वजह से हमारे कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इस लानिया और गैर लानिया लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। जी। मुजफ्फरगढ़ में गैस की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। गैस बंदिश की वजह से लोग लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए हैं, जिससे अखराजात में इजाफा होने लगा है। मज़ीद जानते हैं मलिक उसामा से। मुजफ्फरगढ़ में गैर एलानिया गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गैस की बंदिश के बाद घरेलू सार्फिन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मुतबादिल ईंधन LPG और लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी हाँ, सुबह के वक्त जो टाइम दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, उसके मुताबिक गैस तो आती नहीं है। अगर आ जाए तो परेशानी तकाई काम होता है, कोई चीज़ बनती नहीं है। सुबह बगैर नाश्ते के बच्चे स्कूल जाते हैं, दफ्तर हम जाते हैं, बगैर नाश्ते के जाते हैं या बाहर से लेने पड़ते हैं। इतनी अब 10 तरह से नहीं है कि बाहर से डेली नाश्ता लें। हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है कि जो LPG की गैस की कीमत की बात की जाए तो 510 रुपये हुई ठहरी है। और लकड़ी की कीमत की बात करें, आप लकड़ी लेने आए हो
1200 से 1600 रुपये महीने, बताएं गरीब हम कहाँ जाए। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि गैस की कीमतों में जो है इसमें भी कमी की जाए और जो शेड्यूल के मुताबिक गैस है उसे दिया जाए। लिहाजा हुकूमत से हमारी यही अपील है। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि हुकूमत से यही मुतालबा है कि गैस का शेड्यूल जो बनाया गया है उसके मुताबिक ही गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकपतन में कॉलेज रोड पर वाक़या रेडी बाजार शहरियों के लिए अजाब बन गया है, जहां हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका। बाजार के बाइस आए रोज हादसात भी पेश आ रहे हैं, जबकि करीबी स्कूल के तुलबा को भी मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। और उधर जंबर मोड़ के नवाही गांव जाने वाली मेन सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होकर खंडर का मंजर पेश कर रही है, जिसके बाद शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस बारे में जानते हैं शहबाज भट्टी से। जंबर गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने से ये मेन रोड गुजरता है, जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको बताते चलें कि ये वाहद वो रोड है जो गुलशन खानगी और ठठिया तार को आपस में मिलाता है। तो इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? शब्बीर अहमद। जी शबीर साहब, ये हमें बताएं कि ये जो रोड की खस्ता हालत है, ये टूट फूट का शिकार है, ये इसकी क्या वजह है? ये इसका जी वो काम हो रहा था, रास्ते में काम रुक गया है, आधे बीच में काम रोक दिया। कहते थे कि तोड़ जमर मोड़ तक जाएगा, लेकिन रास्ते में काम रुका, पैप उधर पड़े हुए हैं। अब ये नहीं पता भी क्या वजह है, क्यों रुका हुआ है। जी ये बिल्कुल गवर्नमेंट हाई स्कूल जंबर के सामने से गुजरता है और हमारे इलाका के ही जो वज़ीर तलीम राना सिकंदर यार साहब हैं, ये उनके इलाके में ये ऐसे हालात है स्कूल के बिल्कुल सामने। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? हम जहाँ पे खड़े हैं ये वज़ीर तालीम का हल्का है, स्कूल वाक़ई वज़ीर कानून साहब के हल्के में है। दोनों बुज़ुर्ग को अच्छी वज़ारत अल्लाह ने दी है, इन दोनों को चाहिए कि मिलकर ये काम करवा दें और आवाम से दुआएं लें। अब आवाम बड़ी परेशान, जब बारिश आती है यहाँ पे पानी गोडे से भी ज़्यादा ऊपर खड़ा हो जाता है, निकलने में आने जाने में बेतहाशा यहाँ पे परेशानी होती है। कई शहर यहाँ पे गिरे हैं, चोटें आई हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं बच्चों के। यहाँ पे मोटरसाइकिल बारिश में गुजारना बड़ी मुश्किल हो जाती है, गाड़ी वाले भी परेशान होते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी है। शहरी का कहना है कि ज़िला कसूर और तहसील पतोकी का जो नवाई गाँव है जंबर, तो इधर के जो दो हमारी वजारतें हैं, वज़ीर कानून वज़ीर तलीम के होते हुए जंबर का ये हालात है, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो हमारी वज़ीर आला मरियम नवाब से गुजारिश है कि ये जंबर के हालात पे कोई तरस खाएँ और इसका जो मेन रोड है इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना होता है और शहरियों की। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे नूरियाबाद के करीब स्ट्री रोड खस्ता हाली का शिकार है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक सड़क की आखिरी मुरम्मत 2018 में हुई थी, जबकि भारी डंपर्स ने उसे मजीद तबाह कर दिया। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि टोल प्लाजा पर गाड़ियों से रकम वसूल की जा रही है, मगर सड़क की बेहतरी पर खर्च नहीं हो रही। आवाम ने शफाफ इंक्वायरी और फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। पाकपतन में कॉलेज रोड पर वाक़या रेडी बाजार शहरियों के लिए अजाब बन गया, जहां हर वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। बाजार के बाइस आए रोज हादसात भी पेश आ रहे हैं, जबकि करीबी स्कूल के तुलबा को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बताएंगे बख्तियार सुखेरा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन के दिल काले रोड पर, जहाँ पर सड़क के दोनों तरफ नजायज तजावजात की भरमार है। यहाँ पर मरियम नवाज का बाजार भी लगाया गया है, जिसकी वजह से जो खरीदार हैं जब वो खरीदारी करने के लिए आते हैं, तकरीबन 10 फीट जगह दुकानों ने घेर रखी है। उसके बाद जो मोटरसाइकिल वगैरह खड़े होते हैं, तो आए रोज यहाँ पर हादसे हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, मजीद उन्हीं से जानते हैं वो हुकूमत वक्त और बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा साहब से क्या अपील करना चाह रहे हैं। जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, एक तो ये है कि ये जितनी 10-10 फुट तजावजात इन्होंने आगे बढ़ाए हुए हैं, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जब भी आप पे कोई लोग फ्रूट या कोई चीज भी लेने के लिए खड़े होते हैं तो ये 4 से 5 फुट और बाहर निकल आते हैं। दूसरा ये कि साथ ये बच्चों का स्कूल है, जितने भी घर वाले आने जाने को होता है सर उनके लिए तंगी हो रही है। लिहाजा सर इनको अगर आप साइड से बाहर को इनके लिए जगह मखसूस कर दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा, आवाम के लिए भी और हमारे अदारे गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है जी। दूसरा ये है
کہ یہ LPG جو گیس ہے سر یہ 510 سے 520 روپے یہاں پہ سیل کی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ہمارے کمشنر صاحب یا DCO صاحب کو اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ جو گیس ہے یہ ویسے گورنمنٹ کا ریٹ 320 310 ہے. تو لہٰذا اس میں بھی تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے, ہماری عوام کے لیے کو تھوڑا بہتری کا سبب بنائے. جی جیسا کہ شہریوں کی بات آپ نے سنی, شہریوں کا کہنا ہے کہ بالخصوص ڈپٹی کمشنر آصف رضا صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جہاں پر یہ بازار لگایا گیا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بچوں کا اسکول بھی ہے, جس کے لیے آنے جانے کے لیے بچوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آئے روز یہاں پر حادثے کا سبب بنتے ہیں. اس لیے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ یہ جو بازار ہے اس کو یہاں سے شفٹ کر کے باہر ریلوے روڈ کے ساتھ کلب روڈ پر اس کو منتقل کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا, TV ٹوڈے, پاک پتن. وہاں تاندلے والا میں صدر کسان بورڈ مہر صدی احمد بربانہ نے مطالبہ کیا کہ گندم کی خریداری سرکاری نرخوں پر یقینی بنائی جائے. ان کا کہنا تھا کسان پہلے ہی مہنگی کھاد اور دیگر اخراجات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور کم قیمت پر خریداری ناانصافی ہوگی. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ادارے متحرک ہو کر کسانوں کو مکمل معاوضہ دلائیں اور استحصال کا خاتمہ کریں. بہاولپور سے ایک اہم صورتحال سامنے آ رہی ہے جہاں مبینہ طور پر مافیا کسانوں کو گندم کم نرخوں پر فروخت کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں. اس صورتحال نے مقامی کاشتکاروں میں شدید تشویش پیدا کر دی ہے. مزید کیا تفصیلات ہیں اپڈیٹ کریں گے زاہد ذوالفقار. جی زاہد. جی اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے نواحی گاؤں میں جہاں گندم کی کٹائی کا کام زور و شور سے جاری ہے. 3500 روپے فی من گندم کا ریٹ طے کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, پر کسان اس وقت پریشان ہے کیونکہ مافیا ان کو 3000 سے بھی کم پر ریٹ دے رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ کسان رہنما چودھری جاوید صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی سر, کیا مشکلات ہیں آپ کی؟ مشکلات ہمیں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیداوار ہے گندم کی وہ تقریباً 34-35 من آ رہی ہے. اس پہ DAP ہے, اس پہ یوریا ہے, پانی ہے. اب جو ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ ہمیں تو وہ جو 34-35 من ہے وہی خرچہ ہمارا نہیں پورا ہو رہا. اور جو مافیا ہے 3500 روپے من گورنمنٹ نے ریٹ کیا ہے وہ لے رہے ہیں 2700-2800 روپے فی من. میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ مافیا کو کنٹرول کریں, اس لیے کسان مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے. مہربانی ہوگی آپ ان کو مافیا کنٹرول کر لیا تو کسان بچ جائے گا. جی کسان سارا سال گندم کی فصل سے امیدیں لگاتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات اپنے قرض ان سے پورا کرے گا. جنوبی پنجاب کا کسان شدید مشکلات کا شکار ہے. وزیر اعلیٰ سے گزارش ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے. جی مرید کے میں ریلوے پھاٹک پر شہریوں کی جانب سے انتہائی خطرناک لاپرواہی دیکھنے میں آ رہی ہے, جہاں ٹرین کی آمد کے وقت پھاٹک بند ہونے کے باوجود شہری غیر قانونی طور پر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس صورتحال کے باعث کسی بڑے حادثے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. اسی پر جانتے ہیں عمران علی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل, مرید کے ریلوے پھاٹک پر شہریوں کی خطرناک لاپرواہی جاری ہے. ٹرین کی آمد کے وقت پھاٹک بند ہونے اور فلائی اوور موجود ہونے کے باوجود لوگ رکنے کی بجائے غیر قانونی طور پر گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سوار اور پیدل افراد بند پھاٹک کے اطراف سے ریلوے لائن عبور کر رہے ہیں, جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے انتظامیہ فوری ایکشن لے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران علی, TV ٹوڈے نیوز, مرید کے. اوکاڑا میں SHO کے خلاف مبینہ زیادتی اور جھوٹی FIR کے اندراج پر شہریوں کا شدید احتجاج سامنے آ گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ نواحی گاؤں 38 میں ایک باثر ذمہ دار نے سرکاری راستہ بنانے سے روکا, جبکہ SHO نے مبینہ طور پر اس سے ساز باز کر کے غریب شہری کے خلاف جھوٹی FIR درج کر دی. اہل علاقہ نے اس اقدام کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے SHO کی فوری معطلی اور شفاف انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے. ٹنڈوالہ یار کے شہر چمبڑ میں پڑے گا سندھ کے تحت تعلیمی آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی کی قیادت DEO پرائمری رستم علی میر جت اور دیگر تعلیمی افسران نے کی ہے, جبکہ شرکاء نے تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. مقررین کا کہنا تھا سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم, نصاب اور سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. ریلی کے اختتام پر شرح خواندگی بڑھانے کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا. صادق آباد میں تعلیمی شعبے میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے. ضلع کا پہلا بایو میٹرک حاضری نظام متعارف کروایا گیا. اس موقع پر حکام کا کہنا تھا کہ بایو میٹرک سسٹم سے اساتذہ کی بروقت حاضری یقینی بنے گی اور تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی. مزید بتایا گیا کہ جلد ہی دیگر اسکولوں میں بھی مرحلہ وار ڈیجیٹل اٹینڈنس سسٹم متعارف کرایا جائے گا, جبکہ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں بھی جلد تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا.
मुस्तफाबाद में ख़वातीन कॉलेज में नई सहूलियात का इफ्तिताह, तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया गया। तालिबात ने साइंसी मॉडल्स और तहकीकी मंसूबे पेश किए हैं जिन्हें मेहमान ख़ुसूसी ने सराहा है। उन्होंने कहा तालीम और तहकीक किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद हैं और तालिबात की सलाहियतें काबिल तहसीन हैं। इस मौका पर कॉलेज की मज़ीद बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। गोजरा के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ साइंसी मॉडल्स और तहकीकी मंसूबे पेश किए, जबकि AI रोबोट ने मेहमानों का इस्तकबाल भी किया। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। डायरेक्टर कॉलेजेस का कहना था कि इस तरह की सरगर्मियों में से तलबा की तख्लीकी और तालीमी सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होता है। शिया उलमा काउंसिल तहसील अहमदपुर सियाल के वफ़द ने गढ़ महाराजा में इमाम बारगाह खैमा सादात का दौरा किया, जहां उन्होंने सैयद लियाकत हुसैन शमसी के साहबजादे की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वफ़द ने शहजादा अली ज़ुल्करनैन नकवी, सैयद लियाकत हुसैन शमसी और सैयद तौकीर अफजल नकवी से मुलाकात की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की। इस मौका पर सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार भी किया गया। फैसलाबाद में खादिमुल इस्लाम फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम डॉक्टर पीर खादिम हुसैन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना मुबारक की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई हैं। तफसीलात जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरूख नकवी की इस रिपोर्ट में। उर्स मुबारक की सदारत पीर सैयद हुसैन शाह गिलानी अल मरूफ आगा जी सरकार ने की और जामिया में दीनी और कुरान की तालीम हासिल करने वाले तलबा को सनात से नवाजा गया। उर्स मुबारक में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत साहबजादा मोहम्मद अरशाद कादरी ने हासिल की। मुबारक की तकरीब में उलमा कराम, अजीज़ो कारब और अहले इलाका समेत मरीदैन ने कसीर तादाद ने शिरकत की। कारी मोहम्मद अकमल अकबर चिश्ती और मोहम्मद अजमल अकबर चिश्ती ने काफ़िलों के साथ उर्स मुबारक में शिरकत। कारी अली अकबर चिश्ती अल मरूफ नूरानी पीर ने इख्तिताम महफिल पर अज़मत कुरान पाक उजागर करते हुए कहा, इख्तिताम उर्स पाक ख़त्म पाक का एहतमाम भी किया गया। बाद अज़ां वतन अज़ीज़ की तरक्की, खुशहाली, अमन व सलामती की खसूसी दुआएँ भी मांगी गईं। फ़र्रुख नकवी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर सरगोदा में खबे की झील पर 2 रोज़ा सियाती मेले का इनेकाद किया गया। मेले में मीना बाजार, बच्चों के लिए झूले और मौसीकी प्रोग्राम शामिल होंगे, जबकि MD टूरिज्म कमिश्नर सरगोदा और डिप्टी कमिश्नर खुशाब मेहमान खसूसी होंगे। हुकाम का कहना है इस तरह के प्रोग्राम से सियाहत को फ़रोग़ और आवाम को तफरीह के बेहतर मौक़े मुयस्सर आएंगे। नसीराबाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए एहतमाम रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज शहीद अब्दुल गफ्फार सियाल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। मैच में मोहम्मद अजीज ने शानदार सेंचुरी स्कोर की, जबकि यासिर हुसैन बुगटी ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 10 खिलाड़ियों को आउट किया। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने मैच से लुत्फ उठाया, जबकि इस इवेंट को नए टैलेंट के फरोग के लिए अहम करार दिया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।